this government needs to understand or has failed to understand or doesn't want to appreciate the fact that the right to oppose and agitate are fundamental to any democratic setup. They deliberately want to curtail our rights, and they don't understand that no democratic setup in the entire world has curtailed the right to oppose and agitate. This is not the first government in independent India. We had several parties in power from 47 till now. Even my party was there in power for several years. Student activism in India have been there prior to Indian independence. College campuses and university campuses have been the hotbed of student struggles and movement in this country. Many of the ministers, those who are there, many of the MPs, those are there from the ruling dispensation, have been a part of some movement or the other in the college or the university. Now, when they are in power, this party wants to snatch away the right to agitate and express our concerns against the government. I would just like to mention here that no prime minister, no leader, no minister is above criticism. कोई भी एक प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता है तो खुदा नहीं बन जाता. हिंदुस्तान इसके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे, बहुत सारे मंत्रियां देखे, बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे, और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आएंगे, बहुत सारे मंत्री और मुख्यमंत्री आएंगे. लेकिन कोई मंत्री पद की पोस्ट पे या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की पोस्ट पे जब बैठता है तो खुदा नहीं बन जाता कि वो क्रिटिसिज्म के ऊपर हो जाए. किसी भी डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए. कोई भी लॉ जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पास होता है उसको हिंदुस्तान के हर सिटीजन को राइट है उसको क्रिटिसाइज करने का, उसको अपोज करने का. बहुत सारे टाइम ऐसा होता है, and it has happened in many parts of the world, that when you have a brute majority, you try and get anything passed in the parliament. But the people have rose to the occasion and opposed the draconian laws or the black laws that have been passed by those countries and those parliament in their countries. And this has happened in our country also in the past. So this movement was a spontaneous movement, not by any party. I don't think I have seen even a single party flag across the country while the people have been protesting. It was a spontaneous movement. It was a movement by the people of this country. It was a movement by the people wanting to save the democracy, wanting to save the constitution of this country. I would like to make an observation. In the name of fighting pandemic, the government has launched an attack on the working people. Even the Prime Minister has admitted the worst hit because of corona pandemic, the worst hit are the poor people, migrant laborers, Dalits, Adivasis. This government has betrayed them, failed them all. In the name of fighting pandemic, this government is centralizing all powers in its hands, thereby undermining the federal principles in our country, undermining the rights of state governments in the country. In the name of fighting pandemic, this government is snatching the hard-won trade union rights, working class rights in the country. In the name of fighting pandemic, this government is undermining democracy. This government is undermining parliament. This government is pursuing its aggressive neoliberal policies. Having said that, I do see the grave danger to our secular democratic fabric of our society, to our constitution. While fighting pandemic, there should be unity of the people, but the government continues its attacks on the activists. They are student activists,
They are intellectuals, they are human rights activists, they are democratic rights activists across the country. There is a pattern. Delhi police, yes, it acts in its own way, but what is Delhi police? It is directly under the Home Ministry. Home Minister must be held answerable, accountable for all that Delhi police is doing. There is a pattern, there is a trend. Ever since BJP, RSS combined captured power, the universities, the intellectuals, the activists have become targets, What happened in Hyderabad Central University? Why Rohit Vemala should commit suicide? It was an institutional murder. What happened in JNU? Sedition charges against student activists. And what is happening in other universities? Horrific things are happening. And we should keep in mind why it is all happening. The RSS BJP combined is trying to push through its communal fascist agenda. It is nothing but fascism. It is nothing but neo-fascism. We should keep in mind. Yes, when I was in Parliament, I moved a private member resolution against opposing sedition. And when UAPA was first time introduced in Parliament, I, on behalf of my party, CPI, opposed it. Now it has been made more draconian, and we need to fight why this sedition law, UAPA, should be applied, should be implemented, should be applied against activists. That's what we should question. वतन सबका है, कुर्बानी भी सबकी है. वतन सबका है, कुर्बानी भी सबकी है. न देखो इतनी नफरत से मुसलमान को. आज देश के अंदर जो हालात हमारे सामने हैं और इस देश को आजाद कराने में क्या हिंदुस्तान का कौन सा आदमी था जिसने के हिस्सा नहीं लिया, और खास तौर से मुसलमान कौम ने बहरहाल अपनी हर किस्म की कुर्बानी दी. हजारों उलमा फांसी पर लटक गए और कितने लोग मतलब ये कि सूली चढ़े, मारे गए. जलियांवाला बाग में उनका कत्ल हुआ. जगह जगह और जगह जगह मुसलमानों के साथ जातियां और जुल्म हुई, लेकिन मुसलमानों ने उस जंग आजादी में भरपूर हिस्सा लिया. वो डरे नहीं और उन्होंने ये समझा कि मुल्क सबका है, इसलिए हमें सबको मिलकर इसके देश को बचाने के लिए कुर्बानी देनी होगी. तो आज देश हमने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि हमारे साथ ही नाइंसाफी की जाए, नफरत से हमको देखा जाए. हमने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिससे कि आज भी जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है और मुल्क के हालात कोरोना से हम जूझ रहे हैं, तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारी तरफ नफरत की निगाहें लगी हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन इसको समझना होगा. इंसान है सब, अल्लाह के सब बंदे हैं, सब को उसी ने पैदा किया है. हमें इस लॉकडाउन के मौके पर और कोरोना के वायरस के सिलसिले में बहरहाल मिलकर लड़ाई लड़नी होगी. जब भी हम इसमें जीत हासिल कर सकते हैं और हम एक दूसरे की नफरत में लगे रहे तो मुल्क तबाह हो जाएगा. गुजरात में ट्रंप की आमद पर जो एक बड़ा जम्मे गफीर वहां लाखों की तादाद में जमा किया गया था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या वहां बाहर से आए हुए सैकड़ों हजारों लोग थे, उन्होंने किसी ने कोरोना वायरस को लाकर फैलाया? इस पर कोई जांच नहीं हुई और इसको कोई सवाल नहीं कर सकता, इसलिए कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सफल प्रोग्राम रहा. उसके बाद 18 मार्च को, देखिए ये बहुत अहम चीज मैं बताने जा रहा हूँ, 18 मार्च को सुबह 11 बजे जब पार्लियामेंट के सेशंस के लिए
लोग इकट्ठा हुए और राज्यसभा में 11:02 पर जब चेयरमैन साहब तशरीफ लाए और उनको रिसीव करने के लिए हमारे कुछ साथी एमपी खड़े हुए, तो उनमें से कुछ लोगों ने मास्क पहना हुआ था। 18 मार्च, आप अंदाजा लगाइए कि जब पूरी दुनिया में कोरोना की लड़ाई चल रही थी और सबको पता था, भारत में 4 मौतें हो चुकी थी उस दिन। 18 मार्च को 11:02 पर चेयरमैन साहब कहते हैं कि मास्क निकालिए वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये मेरी समझ में नहीं आई बात। ये क्या सरकार इसको एक्सप्लेन करेगी कि हमारे चेयरमैन साहब ने किस गैर जिम्मेदाराना तरीके से इनकरेज करने की बजाय कोरोना की लड़ाई को डिस्करेज किया था। कि खत्म करें इसको, किस्से को। हम आते हैं अब ये कि फसादात के ताल्लुक से आप सबकी तवज्जो, खास तौर पर मनोज झा और हमारे दानिश साहब, मैं आपको ये इस बात की तवज्जो चाहूँगा कि 26 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने रिट पिटीशन नंबर 565 ऑफ 2020 filed by Harsh Mangar was heard by Justice Muralidharan and Justice Talwant Singh. मेरे पास ये आदेश है और इस आदेश को पढ़ने के बाद मुझे बड़ा हैरत हो रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे क्रिमिनल लॉ का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से फसादात में पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए। आम तौर पर हमने देखा है इस मुल्क में कि जहां जानिबदाराना तरीके से तफ्तीश होती है, मुसलमानों के खिलाफ अक्सर हमने देखा है कि ज्यादतियाँ होती हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, उन पर थोपे जाते हैं इल्ज़ाम। मुसलमान अगर मजलूम है तब भी वो जालिम के रूप में पेश किया जाता है। ये तमाम चीज़ें तो इतिहास रहा। इस पर्टिकुलर मामले में 26 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने 4 क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स प्ले की गई अदालत में। उसमें पहली क्लिप थी यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की, गोली मारो सालो। उसके बाद दूसरी क्लिप थी भारतीय जनता पार्टी के एमपी श्री प्रवेश वर्मा की, जो दिल्ली वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी हैं। उसके बाद तीसरी स्पीच थी कपिल मिश्रा की, जो 23 फरवरी की थी, जो डीसीपी के सामने उन्होंने भाषण दिया था। और चौथी क्लिप थी एक अभय वर्मा की, जो सिटिंग एमएलए हैं लक्ष्मी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी दिल्ली, वहाँ की। अदालत ने इन चारों क्लिपों को सुना और उसके बाद अदालत ने जो हुक्म दिए हैं उसमें अदालत ने ये कहा अपने ऑर्डर के अंदर कि इन क्लिप्स को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि देयर इज अ प्राइमा फेसी केस ऑफ ऑफेंसेस डिस्क्राइबिंग द मीटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राइम अंडर सेक्शन 153A एंड B IPC। और उन्होंने आदेश दिए कि FIR इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं रजिस्टर की गई। और अभी के अभी आप जाएं, इसे रजिस्टर करें और कल सुबह 11:30 बजे हमारे सामने पेश करें। ये आदेश है मुरलीधरन जी का। और उसी रात को मुरलीधरन जी को वहां से हटा दिया गया। ये हमारे यहाँ का इंसाफ का आलम है। और दूसरे दिन दूसरे बेंच के सामने, क्योंकि इस दिन 26 तारीख को जब ये मैटर सुनी गई, क्लिपिंग्स, वीडियो क्लिपिंग चलाई गई, उनको सुनने के बाद अदालत का ये कहना है कि ये लोग मर रहे हैं, वहाँ फसादात जारी हैं 26 फरवरी को। और ये 4 जो जिन्होंने भड़काऊ भाषण देकर गोली मारने की बात की है, उनके खिलाफ आपने FIR दर्ज क्यों नहीं किया? तो उसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि वी आर वेटिंग फॉर एन अप्रोप्रिएट और कंड्यूसिव टाइम टू रजिस्टर FIR, जिस पर अदालत ने आग बगोला होकर उनसे पूछा। यह आदेश में लिखा हुआ है। ये पूछा कि वी डोंट अंडरस्टैंड। दिल्ली पुलिस का ये अमानवीय चेहरा जो सामने आया, एक तरफ जब देश कोविड-19 से लड़ रहा था, दूसरी तरफ ऐसे आंदोलनकारियों को उन्होंने इस देश के संविधान की मूल रचना की रक्षा करने का काम किया, उन पर इस तरीके का जुल्म और ज्यादती और इस तरीके के फर्जी मुकदमे मैं कहूंगा। और शायद यही वजह थी जब लोकसभा में मैं पहले सेशन ही जब ये UAPA का अमेंडमेंट बिल आया तो विरोध किया था। और ये जो आज के दौर में हमारे नौजवान साथियों की गिरफ्तारी हो रही हैं,
जो कि NRC और CAA के मुतालिक है, इसमें मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लॉकडाउन के ज़माने में भी ये सरकार के लोग नौजवान साथियों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो जामिया मिलिया इस्लामिया के ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। और इसके अलावा पूरे इंडिया में इस वक्त लगभग 40,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर मुनासिब है। ये इस तरह की हरकत नाजेबा है और सरकार को चाहिए कि इस कार्रवाई को फौरन रोके, क्योंकि आज पूरी दुनिया कोविड-19 से गुजर रही है और उसके साथ साथ हम हिंदुस्तान के लोग भी कोविड-19 से गुजर रहे हैं। हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए अपना फोकस करना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि मौजूदा सरकार कोविड-19 को कंट्रोल करने में फेल हो गई है। इसलिए अब ये लोग अपना जहन बदलने के लिए, लोगों का जहन बदलने के लिए, आवाम का जहन बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि इस कोविड-19 की नाकामियों से हटकर दूसरी तरफ लोगों का जहन लगा दिया जाए, तवज्जो दिलाए। I'll just put it on record that while the whole country was asked to prepare and follow the strict rules of fighting corona pandemic, stay home and stay safe, while the whole India, all important agencies were supposed to concentrate on corona pandemic, I think one particular agency, particularly the law and order mechanism, particularly Delhi police, they went berserk. They went berserk and made arrests. The modus operandi of these arrests remind you of one of the most brazen manner in which state can operate. Students who were protesters, almost all of us participated in anti-CAA protest. Almost all who are here as part of the panel. We were simply wanting to restore retrieve our constitution so that we can be proud of the fact that we have a preamble and which is inclusive preamble. Now students all over India protested. Now what is very dark, in the dark shadows of the pandemic, what the Delhi police said, and it did. It called students, protesters, activists for discussion, subsequently made arrests. Initially, the arrests were on different clauses. Suddenly, they were almost blanket. They were put under UAPA. We all know courts are not functioning. There is no normal functioning. I have myself in the court premise on 3 and 4 occasions, and I have realized that this is nothing but to give a different kind of narrative. For instance, linking anti-CAA protest for Delhi violence. Only certain set of FIRs are being followed. All other sets of FIRs are being neglected. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।